Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. So, in the last session, we covered if else statement, and I guess only one example we have covered. So, we'll see few more examples for if else statement, and then we'll simply learn the nested if statement, right? So, let's quickly get started, and I'm going to share my screen. So, here the div C++ IDE is there. Let me open the previous file. Here is the demo file which we are covering. So let us say in this example we found the bigger of two given numbers, and this was the last example which we covered if you remember. So अब चलते हैं next example देखते हैं. Let us say write a program that accepts age as input and checks whether the person can cast a vote or not, right? So of course I will remove all this. In this example, of course, we need to take only one variable, right? So let us say I'm defining one variable integer age. In this variable, of course, we'll take the input. So सबसे पहले हम लोग लिखेंगे printf, enter the age of a person. Using scanf, we'll take input percentile d, because integer we need to take as input, where we'll store at the address of age. Okay. After that, we'll simply check the value of age variable. If age is greater than or equals to 18, yes, this should be the condition. And of course we have learned that कि अगर एज वेरिएबल की वैल्यू 18 से ऊपर होगी तभी इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा. सो if the condition evaluates to true, what do you want to be printed? Let us say I want a message to be printed that the person can cast a vote. That's it. Or one more word we can add, yes, the person can cast a vote. After that, else part, and here we can say sorry, the person cannot cast a vote. That's it, and we are done here. I just saved the changes. उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए F11 प्रेस करेंगे, and here is the output. So first of all, it is asking for the input, right? Enter the age of a person. Let us say the age of the person is 25. Yes, the person can cast a vote, right? That is our output. And let us run the program one more time. और इस पर हम लोग let us say age input में देंगे 16. Sorry, the person cannot cast a vote. Simple. So I hope you got some idea about how we can implement the if else statement, right? One more example I want to show you, and that is very much important, and like so frequently it is asked in the examinations of BTech or BCA or any programming related exams, right?
So let us say write a program to check whether the given number is odd or even, right? So again I am removing all these things, and what it says, check whether the given number is odd or even. So सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक सब स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं वो ये कुछ करते हैं मिस्टेक कि वो दो यहाँ पर सोचते हैं कि दो वेरिएबल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक ही नंबर हम लोग इनपुट में लेंगे, राइट? तो एक ही वेरिएबल स्टोर करना है, एक ही वेरिएबल हमें लगेगा यहाँ पर, और उसको हम चेक करके डिसाइड करेंगे वो ऑड है या इवन। तो ऑफकोर्स रिजल्ट दो है यहाँ पर, बट हमें रिजल्ट को स्टोर नहीं करना है, राइट? हमें उसको सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो नंबर तो एक ही स्टोर करना है, तो इसीलिए हम लोगों को एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाट योर थिंकिंग प्रोसीजर शुड बी, राइट? सो लेट अस से एक वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, दैट इज इंटीजर नंबर नो। अब इसका इनपुट लेंगे हम लोग प्रिंट एफ एंटर दी नंबर, सॉरी एंटर दी नंबर। स्कैन एफ से हम लोग इनपुट लेंगे परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ नंबर, राइट? तो नंबर अभी हमारे पास इनपुट में आ चुका है। सिंपली हम लोग कैसे कंडीशन रखेंगे? सो लेट अस से अभी कंडीशन सोचने के लिए हमें सिंपली सोचना पड़ेगा कि मैन्युअली हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। सो लेट मी टेल यू, हम लोग कोई भी नंबर मैन्युअली कैसे डिसाइड करते हैं, हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है विदाउट रिमाइंडर, देन इट इज एन इवन नंबर। और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, राइट, विदाउट रिमाइंडर, देन इट इज एन ऑड नंबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो हम लोग यहाँ पर सिंपल कंडीशन रखेंगे, इफ नंबर मॉड्यूलो, सो यस, मॉड्यूलो इज द operator which gets us the remainder after division operation, right? I guess for the first time I'm covering this operator, right? Modulo operator. So कैसे वर्क करता है वो? I would say number modulo 2। तो वो क्या करेगा, नंबर को 2 से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद कोशंट हमें नहीं देगा, राइट? वो हमें देगा द रिमाइंडर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट? दिस मॉड्यूलो, दिस परसेंटेज साइन। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो ऑफकोर्स आपके पास ये ऑपरेटर तो है ही, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है। तो यहाँ पर एक और ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, दैट इज नंबर मॉड्यूलो 2। तो अगेन वो नंबर को 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा। अब इस रिमाइंडर को हम लोग कंपेयर करेंगे, इज दैट इक्वल टू 1। अगर वो इक्वल टू 1 है तो हम सिंपली कह सकते हैं प्रिंट एफ percentile d, that is the given number, is an odd number, right? That is what your output is. So अब हम लोग यहाँ पर पूरे स्ट्रिंग के अंदर, see this is called format string, printf के अंदर जो डबल कोट में हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इस पूरे फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टोटल हमारे पास एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने मेंशन किया हुआ है, एंड दैट इज दिस percentile d, which tells the compiler that यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होगा। कौन सा नंबर? तो ऑफकोर्स एक ही वेरिएबल है हमारे पास, दैट इज नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल शुड बी डिस्प्लेड ओवर दैट। सो यहाँ पर नंबर जो भी है हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर वो मैसेज डिस्प्ले करेगा इज एन ऑड नंबर, एंड दैट्स व्हाट वी वांट एज एन आउटपुट। उसके बाद एल्स, ऑफकोर्स अगर रिमाइंडर 1 नहीं बचता है तो रिमाइंडर 0 ही होगा डेफिनेटली, आप चेक करके देखो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज एन इवन नंबर, एंड दैट्स इट, वी आर डन ओवर हियर। सो लेट अस सेव द चेंजेस एंड आई विल रन द प्रोग्राम वंस अगेन। यू कैन सी द आउटपुट। हियर इट इज आस्किंग फॉर द नंबर। मैंने नंबर 10 एंटर किया। What it says, number 10 is an even number, and that is correct. Let us run it again. This time I will enter the number 15, and what it says, 15 is an odd number,
द सेम वे यू कैन चेक विथ सो मैनी अदर नंबर्स ऑन योर ओन. ठीक है, तो आई गेस वी हैव कवर्ड इनफ एग्जांपल्स फॉर द odd even, if else statement. Now in the same session I want to cover one more topic, and that is in our conditional statements. Basically we have covered simple if and if else, two statements we have covered. Now I want to cover the third one, that is nested if else statements, right? So सबसे पहले हम लोग इसकी सिंटैक्स देखेंगे. सिंटैक्स ऑफ कोर्स इफ और कोई कंडीशन आएगी, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स. सो ऑफ कोर्स अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के बॉडी पार्ट में अगर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट है तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ, राइट? जस्ट लाइक अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत HTML सीखा है कहीं से तो आपको पता होगा कि वहाँ पर नेस्टेड टेबल होता है, नेस्टेड लिस्ट होता है HTML के अंदर. द सेम वे, राइट? लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड सब लिस्ट, तो उसे भी हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं. कोई टेबल है, उसके किसी सेल में एक दूसरा टेबल है, तो उसे भी हम लोग नेस्टेड टेबल कहते हैं. द सेम वे यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक इफ स्टेटमेंट होगा और उसके बॉडी पार्ट में अगर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट है तो उसे हम कह सकते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. और यस, यहाँ पर एल्स पार्ट में भी हमारे पास दूसरा इफ हो सकता है, राइट? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. सो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस ऑफ कोर्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशन 1 जस्ट फॉर आवर रेफरेंस. ओके, यहाँ पर हमारे पास बॉडी पार्ट है, जैसे बॉडी पार्ट के अंदर हमारे पास एक और इफ है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंडीशन सम कंडीशन 2, और यहाँ पर उसका अलग से बॉडी पार्ट हो सकता है, राइट? तो इसके बाद लेट अस से अगर यहाँ पर मैं एल्स लिखता हूँ तो ये एल्स पार्ट किसका काउंट किया जाएगा? सो लेट मी टेल यू, दिस एल्स इज कंसीडर्ड एज इनर इफ एल्स. सो यस, इन दोनों इफ को हम कैसे अलग अलग रिफर कर सकते हैं? सो लेट मी टेल यू, इस इफ को हम कह सकते हैं दिस इज एन आउटर इफ, और ये है हमारा इनर इफ, राइट? सो लेट मी राइट इट हियर इटसेल्फ. कमेंट करके मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि दिस इज आवर आउटर इफ, दिस इज आवर इनर इफ. ठीक है, द सेम वे ये जो एल्स है हमारा, दैट इज दी एल्स पार्ट ऑफ इनर इफ, है ना? इनर इफ का एल्स पार्ट है. और अगर आउटर इफ का एल्स लिखना है तो वो आउटर इफ यहाँ पर जब खत्म होता है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, एंड दिस शुड बी काउंटेड एज दी एल्स पार्ट ऑफ आउटर इफ, राइट? ठीक है, तो दिस इज द सिंटैक्स. ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली एक बार फ्लो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले वो जो ऊपर से एग्जीक्यूट करते करते आता है, तो सबसे पहले वो ये आउटर इफ का कंडीशन चेक करेगा. ध्यान से सुनना, अगर आउटर इफ की कंडीशन इवेल्युएट होती है फॉल्स से, तो वो सीधा आउटर एल्स पे जंप करेगा. ठीक है, वो अंदर इनर इफ पे जाएगा ही नहीं, कंट्रोल. ठीक है, सीधा आउटर एल्स पे जंप करेगा, और यहाँ पर इसका जो बॉडी पार्ट है आउटर एल्स का, वो यहाँ पर वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो नीचे चला जाएगा. लेट अस अज्यूम दी सिचुएशन जहाँ पर अगर इनर इफ का आउटर इफ का कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होता है तो वो अंदर जाएगा, इनर इफ को इवेल्युएट करेगा. इनर इफ का कंडीशन भी अगर लेट अस से वो इवेल्युएट टू ट्रू होता है तो उसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करेगा और फिर सीधा वो बाहर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका बॉडी पार्ट इसका कंडीशन ट्रू था, तो इस इफ के बॉडी पार्ट में गया, तो ऑफ कोर्स एल्स में तो नहीं जाएगा, तो ये पूरा एल्स स्किप हो जाएगा. और यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू थी, तो इसीलिए तो वो उसके बॉडी पार्ट में गया है, तो इसीलिए ये आउटर एल्स को भी स्किप कर देगा, राइट? ठीक है, आफ्टर दैट अगर यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज़ पीछे स्क्रॉल करके इस पार्ट को फिर से देख सकते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, मैं सारे सिनारियो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट सिनारियो है हमारा, लेट अस से ये कंडीशन इवेल्युएट होता है ट्रू से, और ये इनर इफ का जो कंडीशन है वो इवेल्युएट होता है फॉल्स से.
तो यहाँ से वो सीधा जंप करेगा एल्स पार्ट पे, इसका बॉडी पार्ट वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद सीधा वो जाएगा बाहर, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो ट्रू था तो इसीलिए तो वो अंदर आया है, और ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और आउटर इफ का बॉडी पार्ट हुआ तो आउटर इफ के एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, और एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आउटर एल्स के पार्ट में भी दूसरा इफ एल्स हो सकता है, राइट, दैट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन, बट अभी सिंटैक्स के लिए हम लोग इतना ही कवर करेंगे। तो आई होप यहाँ पर आप पॉज करके सिंटैक्स को नोट डाउन कर लेंगे। मैं यहाँ पर सीधा इसका आपको एग्जांपल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, एंड विल सी ओनली वन एग्जांपल फॉर दिस नेस्टेड इफ एल्स एंड विच इज़ द आइडियल वन। ठीक है, नॉर्मली हर एक बुक में, हर एक यूनिवर्सिटी में सेम एग्जांपल कवर किया जाता है जो आपको नेस्टेड इफ एल्स का पूरा आइडिया दे देता है। तो वो सेम एग्जांपल मैं भी यहाँ पर कवर करूँगा, और वो आइडियल एग्जांपल आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या है वो एग्जांपल? राइट अ प्रोग्राम टू चेक और टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, देखिए हमने 2 नंबर में से लार्जर नंबर को फाइंड किया है ना, बिगर ऑफ 2 गिवन नंबर, बट हमें 3 नंबर में से सबसे लार्ज नंबर को फाइंड करना है। सो दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो पूरा मेन पार्ट है प्रीवियस प्रोग्राम का मैं वो उसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, सी यहाँ पर लिखा है 3 गिवन नंबर्स, ऑफ कोर्स वी नीड टू स्टोर 3 नंबर्स, वी आल्सो हैव टू टेक 3 नंबर्स एज इनपुट। तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर अगेन डिक्लेयर करेंगे, n1 n2 n3 भी आप लोग लिख सकते हो, या तो फिर सिंपल a b c 3 वेरिएबल आप ले सकते हो। तीनों का इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे, तो सीधा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं printf एंटर 3 नंबर्स। ठीक है, स्कैनफ से, एक ही स्कैनफ में मैं यहाँ पर बेसिकली तीनों नंबर को इनपुट ले लूँगा, %d वाइट स्पेस %d, वन मोर वाइट स्पेस %d, आफ्टर दैट कॉमा करके जो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फर्स्ट %d है वो वैल्यू मैं कहाँ पर स्टोर करूँगा, एड्रेस ऑफ a, कॉमा सेकेंड एड्रेस ऑफ b, कॉमा थर्ड नंबर एड्रेस ऑफ c। तो तीनों वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यूज को इनपुट में ले लिया है, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि देखिए अभी लार्जेस्ट फाइंड करना है ऑफ 3 गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, दैट इज इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है। ठीक है, अगर a b से बड़ा है तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि a को हमें c से भी चेक करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द सेकेंड इफ, द नेस्टेड इफ। ठीक है, इनर इफ, यहाँ पर एक और इफ लगेगा, और अभी a को हम c से भी चेक कर लेंगे, दैट इज द थर्ड नंबर। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो कभी भी आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। मैं एक ही चीज़ 2 या 3 बार बोलकर वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी के लिए ये चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली उनको रिवाइंड करके 2-3 बार इसको कवर करना पड़ेगा, एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको पूरी समझ इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए a को b से चेक किया, अगर a b से बड़ा है तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, a को c से भी कंपेयर कर लेंगे, अगर a b और c दोनों से बड़ा है then we can conclude that the a is the largest, %d is the largest number। ठीक है, and that is your a। ठीक है, यहाँ पर else पार्ट लिखेंगे हम लोग, else पर वो कब आएगा, ये एल्स पर तभी आएगा जब ये कंडीशन ट्रू है, दैट इज ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तभी तो ये एल्स पे आया है। तो ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हो, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स सी इज लार्जेस्ट, राइट, इज द लार्जेस्ट नंबर एंड दैट इज योर सी। ठीक है, यहाँ पर आउटर इफ का एल्स पार्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर भी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि एल्स पर आया, दैट मीन्स ए और बी में बी बड़ा है।
लेकिन अभी हमें b को फिर से c के साथ चेक करना पड़ेगा इफ b इज ग्रेटर देन c एज वेल, क्योंकि यहाँ पर वो आया है इस एल्स में आया है, दैट मीन्स a और b में b बड़ा है, लेकिन b को हम यहाँ पर c से भी चेक कर रहे हैं, अगर b c से भी बड़ा है देन वी कैन डिसाइड दैट परसेंटाइल b इज द लार्जेस्ट नंबर, एंड दैट इज योर नंबर b। और इसके एल्स पार्ट में अगर हम सोचे तो यहाँ पर ये कब आएगा, जब सबसे पहले तो a और b में b बड़ा है, इसीलिए तो वो एल्स पार्ट में आया, a और b में b बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, a और b में b बड़ा है लेकिन b और c में c बड़ा है, तो यहाँ पर हम अगेन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, c इज लार्जेस्ट, राइट, परसेंटाइल b इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, एंड दैट इज योर नंबर c। तो यहाँ पर आई गेस लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको आराम से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट कब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी क्वेरीज है उसको कवर करने के लिए, ठीक है। बट आई गेस हमने यहाँ पर इनफ देख लिया। अभी यहाँ पर मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 3 नंबर यहाँ पर मैं इनपुट में दूंगा, लेट अस से 10 20 30, 30 इज द लार्जेस्ट। अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को दिया है, अभी मैं रैंडम ऑर्डर में नंबर्स इनपुट करूँगा, लेट अस से 45, सम नंबर 23 एंड देन सम नंबर लेट अस से 39, and you can see 45 is the largest number. So that way you can give the numbers in any order and you will get the largest number displayed, right? So इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो आई गेस आपको यहाँ तक हमने जो भी सीखा है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। सो आई गेस आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एलसीफ लेडर को कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो फिर अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।